Hello everyone. I believe Sunil is Hi not Rahul. around. Just let's wait for you can say a couple of minutes so that Philin will join in, and then we'll start. So hi Sunil. Hi, Rahul. Just give me a second. I'm doing something. Okay. So this is our reason class, and my shortcut key is not working. So alt. Okay. So just give me a second. Let me share the paint, and then we'll start. And okay. Just give me a second, guys. Okay, so what I was doing was today, first of all, we start, you can say, with gradient descent. What is gradient descent and how it is kind of covered and all those things. So we'll start with the gradient descent part, guys. So just give me a second, and then we'll start. Rahul, can we start with time series? No, first let's do gradient descent, then we'll do PCA, then we'll do time series. Okay, so just give me a second, because I'm scrolling through some things. Got it. Okay. Why Zoom is not opening up now? Okay. I believe my paint is visible to everyone. Yes. Okay, so let's draw one of the functions, and we'll start with a very basic example of gradient descent, and that can be applied to, you can say, any kind of you can say thing. So there is a concept over here, and let's start then. So guys, let me write one of the function. Let's say y is equal to x square, and if I draw function out of it, let me make this x more visible.
y is equal to x square. Okay, and suppose if I draw a function out of it, so it will be in this manner. You all agree with me on that part? Yes. So as like let's say y is a function of x, and the function of x is like a square root of x. So if I increase x, so it will simply go in this manner. It will be a parabolic function, and here it is. You can see the 0 is there, and this is your function. This is your this is the graph of your function. And let's say suppose if x is equal to 4, so it will be 16. If x is equal to 8, it will be 64. Like it is increasing exponentially because it's squared. That's why. Okay. So now what I was telling you is, suppose let's assume that you want to minimize this function. You want to find the value for which the y will be minimum. Now when y will be minimum? Y will be minimum when x is minimum. Like for a particular value of x, we'll get y minimum. Now what is that value of x for which my y will be minimum? For a second, let's assume that our objective is to minimize this function, to minimize the value of this function. This is how you can see objective. And now if you want to reduce this, first of all, and we all know like this is a very simple function, so we know that the value of x is equal to 0 if x is equal to 0. This is the most minimum function, like y will be the most minimum. Do you agree with me on that part? Like this is a function. Yes. किस वैल्यू पे y सबसे कम होगा? Yes. तो x 0 होगा तो y सबसे कम होगा. बहुत सिंपल सा फंक्शन. इसमें एक सेकंड देना. एक सेकंड. Someone is texting me, so I had to reply. Okay. तो इस वाले फंक्शन के लिए सबसे कम होगा. ओके. अब एक चीज और, सपोज कर लो मैं आपको बोलता हूँ, आपको याद है व्हाट इज स्लोप गाइस? व्हाट इज स्लोप? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्लोप? कोएफिशिएंट ऑफ x. ऑफ कोर्स, मतलब आसान भाषा में बोले तो आपके सिंगल यूनिट ऑफ x के लिए कितना यूनिट ऑफ y चेंज हो रहा है, तो आसान भाषा में dy by dx बोलते हैं स्लोप को. और आप बोल सकते हो y2 minus y1 divided by x t minus xt minus 1. थोड़ा सा खोल के लिखो, हालांकि ये फॉर्मूला इतना जेनरिक नहीं है, बट दिस वन इज द मोस्ट जेनरिक. dy by dx, that is a slope, and that is what is slope. इसको कैसे इंक्लूड करेंगे? विल कवर ऑल दिस थिंग्स, डू नॉट वरी. लेट मी चेंज द कलर. सपोज करो मैं बोलता हूँ मेरी इतनी यूनिट के लिए इतना y चेंज हो रहा है, सो दिस इज माय स्लोप. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी हो सकता है कि मेरे इतने x के लिए इतना y चेंज हो रहा है, ठीक है, ये भी मेरा स्लोप हो सकता है. मेरे इतने x के लिए मेरा इतना चेंज हो रहा है, तो स्लोप चेंजेस बेसिकली हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लोप चेंज होगा. ठीक है, तो आपकी कितनी इक्वेशन के लिए कितना वो चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट इज स्लोप. तो अगर मैं सपोज कर लूँ मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे स्लोप देखना चाहूंगा, तो मेरे सिंगल यूनिट ऑफ x के लिए कितना y चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट इज स्लोप. ठीक है. अब मेरे को सपोज कर लो, मैं ज्यूम कर लेते हैं, मैं इसका पूरा एक्सेल भी बना के दिखा दूंगा, आपको उसकी टेंशन मत लो. सपोज कर लो मेरा x इधर है, या सपोज कर लो दूसरा कलर लेते हैं, मेरा x इधर है. ठीक है, मेरा x इधर है. मेरे को उसको अल्टीमेटली आना कहाँ है? उसको अल्टीमेटली आना है 0 पे. 0 पे क्यों आना है? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव करंटली मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को. करंटली हमारा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को. ठीक है, और जब हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो मिनिमाइज कहाँ पे होगा? ये मिनिमाइज होगा 0 पे, जब आपकी x की वैल्यू, क्योंकि बहुत आसान सा फंक्शन आपको दिख रहा है कि सबसे कम कहाँ पे होगा, ये सबसे कम होगा 0 पे, और जब 0 पे सबसे कम होगा तो सबसे मिनिमम होगा वो फंक्शन. ठीक है. अब उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं? एक फॉर्मूला है, बहुत आसान सा और बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है.
उसको अच्छे से एक्सेल में भी देखेंगे उसका आउटपुट, तो उसकी टेंशन मत लो। ओके तो आपका नया x इक्वल टू x ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू आपका जो फंक्शन है df लिख देते हैं, df अपॉन dx, मतलब x के बेसिस पे आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है। अब इतना तो सभी को पता होगा, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 2x। मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो कोई भी आपके पास पावर हो, अगर जैसे सपोज कर लो x n है, तो आपकी डिफरेंशिएशन के बाद हो जाएगा nx n-1। ठीक है, मतलब इसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये इसको पावर रूल बोलते हैं, पावर रूल। यहाँ तक क्लियर सभी को? राहुल तो सिर्फ एक ही डाउट था मुझे, ये जो बोलिए। आपने कर्व बनाया है एक्स वाला जिसमें पॉइंट रखा है, वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना शायद? वो जो ये फंक्शन मतलब x की वैल्यू देखो, y जो फंक्शन आपका वो x पे डिपेंडेंट है, तो जो हाँ आपकी x की वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू से आपकी, जैसे सपोज कर लो x की वैल्यू ले लेते हैं हम, यहाँ पे फिलहाल 8 है, तो y आपका 64 हो जाएगा। लेकिन आपका y तो x के ऊपर डिपेंडेंट है ना, इसलिए अगर उसको एक काम करते, सुनो, ये सबसे यहाँ पे मेरे को पता है थोड़ा सा मुझे एक ही मतलब डाउट था कि ये जो मतलब ये जो कर्व है वो नेगेटिव में भी जा रहा है ना, एंड एक्स स्क्वायर वाला हाँ नेगेटिव जी में। बिल्कुल, एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं a, ठीक है, थोड़ा y से कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, a, ठीक है, मतलब वो y को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, y एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो, ठीक है, मतलब वो सपोज कर लो कि माइनस y एक्सिस है, z एक्सिस है, या k एक्सिस है, कोई भी n डायमेंशनल एक्सिस है, ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। हालांकि वो y को ही रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें, लेकिन z एक्सिस अगर आप मल्टीपल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो कुछ को और भी नंबर आ सकता है वो, ठीक है। तो a इक्वल टू एक्स लेके चलते हैं, y जिसको y लेना वो y भी ले सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है 2 डायमेंशनल केस में, ठीक है, इतना क्लियर सभी को? तो आपकी एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन मैं करता हूँ तो 2x होती है, और जिसको नहीं पता तो आपकी कोई भी पावर वाली टर्म होती है तो उसकी डिफरेंशिएशन ये होती है n इंटू एक्स n-1, ठीक है, उसकी ये डिफरेंशिएशन होती है। तो अगर आपको अपना x अपडेट करना है, देखो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरे को मिनिमाइज करना है, ठीक है, मेरे को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि आपका ओल्ड x माइनस लर्निंग रेट को अभी समझ लेते हैं 1 है, हालांकि आपको पता है लर्निंग रेट क्या है, स्टेप साइज है, ये एक्सेल में अच्छे से समझ में आएगा, मैं एक्सेल में पूरा लगा के दिखाऊंगा इसको। और ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ये डिफरेंशिएशन आपकी हो जाएगी 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है 2x। तो आसान भाषा में बोलो तो x ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इंटू 2x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? संदेश्वर, धैर्य, दीपा, सुनील, बहुत बेसिक सा एग्जांपल उठाया यार एक्स स्क्वायर का। बेसिकली देखो आसान भाषा में फिर से बोलूँ थोड़ा सा, हमने एक इक्वेशन उठाई है कि a इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, और इसकी हम कोई भी इक्वेशन कोई भी ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा जाएगा, मतलब, और बी स्क्वायर की अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा 2 विद रिस्पेक्ट टू बी बोल रहा हूँ, तो 2b हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, तो कोई भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऐसे चलेगा, मतलब ऐसे डिफरेंशिएशन होती है किसी भी, और इसको पावर रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में, दिस इज पावर रूल, ठीक है। ये सबसे आसान एग्जांपल मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें एक ही रूल यूज होता है। अगर किसी ने डिफरेंशिएशन अच्छे से किए तो प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, जैसे वो अच्छा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि अभी आपका जो a है वो बेसिकली b पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो लगा लो b बेसिकली b पे डिपेंडेंट है कि b जैसे बिहेव करेगा उसके रिस्पेक्ट में ये चेंज होगा, सो दैट इज द होल थिंग, ठीक है। और तो अब बेसिकली इसका ही देखना हमें कि तो अब आप कोई भी आपको देखो, आपको x 0 तक पहुंचाना है, 0 तक क्यों पहुंचाना है, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें ऐसी कोई वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पे y या a सबसे मिनिमम हो, और ये जहाँ कहाँ पे सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली देखो हमें ऐसी एक वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पे y या a, जहाँ पर y या a सबसे मिनिमम हो। ये कब सबसे ज्यादा मिनिमम होंगे, ये जब सबसे ज्यादा मिनिमम होंगे जब x सबसे ज्यादा मिनिमम होगा। ऐसा क्यों? स्पेसिफिकली इस फंक्शन में आपका जो y है वो डायरेक्ट रिलेशन में है x स्क्वायर के साथ, इसके साथ कोई ऐसा कोई दूसरा अल्फाबेट नहीं जुड़ा है,
या कोई दूसरा वेरिएबल, जैसे मैं बोल दूं कोई एक सी करके वेरिएबल है, तो आपको नहीं पता है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक इक्वेशन है तो बिल्कुल ही डायरेक्टली रिलेटेड है, और उसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ऐसा ग्राफ निकल के आता है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमको ये कम करना है, तो कम कैसे करते हैं? तो एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बना रखा है दुनिया ने कि आपका जो एक्स फिलहाल वाली पोजीशन पे है उससे हम माइनस करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो इसको हम यूज करेंगे। लर्निंग रेट को भी 1 रख लेते हैं, उसको मैं बताऊंगा कैसे क्या कर सकते हैं। 1 नहीं तो 0.1 ले लेते हैं, जो भी हम लेंगे उसको चेंज करके दिखाऊंगा पूरा एक्सेल में कैसे फर्क आएगा, ठीक है। और एक्स एन, अब सबसे बेसिक क्वेश्चन दुनिया का आता है, जैसे शायद आप लोग भी सोच रहे हो यार मेरा एक्स यहाँ पे होगा, तो जब आपका एक्स यहाँ पे होगा तो ये ऑलरेडी माइनस होगा, ठीक है, और वो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगी जब इसकी डिफरेंस मैं दिखाता हूँ आपको, सारा सब एक्सेल में अच्छे से समझ में आएगा। एक बार मेरे को एक्सेल खोलने दो, एक सेकंड दो मेरे को बस। आसान सा कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट डिसेंट का। स्क्रीन दिख रही है? Yes. जैसे मैंने बोला हमारा y बेसिकली इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और अभी के लिए एज्यूम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, ठीक है। सपोज कर लेते हैं x को लेते हैं 4, ठीक है 4, और लर्निंग रेट है उसको ले लेते हैं अल्फा बोल लो या लर्निंग रेट बोल लो, जो भी आपको बोलना हो, एल लिख लेते हैं लर्निंग रेट, ठीक है। लर्निंग रेट अपना हम बोल लेते हैं एक सेकेंड, x इक्वल टू 4, क्योंकि फॉर्मूला लगाऊंगा ना इसमें, तो मेरे को एक बार इसको इधर लिखने दो, 4, ठीक है। लर्निंग रेट बोल लेते हैं 0.01, ठीक है, या 0.1 भी कर सकते हैं, 0.01 काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था? पहली बात, अगर फॉर्मूला देखो आप, मेरे को पेंट फिर से शेयर करना पड़ेगा यार। हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था आपका पुराना x माइनस द लर्निंग रेट टाइम्स द डिफरेंशिएशन ऑफ योर कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन बेसिकली एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका y पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, x को मैं हल्का सा भी ट्वीक करूंगा तो y चेंज होगा, तो इसलिए बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये लगा लेते हैं हमारा न्यू एक्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमारा एक्स बेसिकली ये है, तो इसको लिख लेते हैं। और अब हमारा लर्निंग रेट दिस दिस टाइम्स 2 डिफरेंशिएशन का एक्स स्क्वायर की
2 into x, ठीक है, तो बेसिकली तो 2 times this, ठीक है, तो आपका कितना हुआ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो, पक्का? ठीक है, मैंने किया क्या, मैं फिर से समझा देता हूँ, शायद समझ में नहीं आया। अरे किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बोलो यार, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारा अगर फॉर्मूला में इधर भी लिखूं तो एक्स एन इक्वल टू एक्स ओ माइनस आपका एल आर टाइम्स आपका डी आर, डेरिवेटिव लिख देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। स्पेलिंग गलत है डेरिवेटिव की, अभी भी गलत है, डी आर आई ए कुछ होगा शायद, डेरिवेटिव, अब ठीक है शायद, यस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैंने अभी क्या किया, हमारा ये फॉर्मूला है, तो हमारा हमें पता है एक्स स्क्वायर हमारा, जैसे हमारा वाई एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2x, ठीक है। और आपका लर्निंग रेट अभी के लिए हमने स्पेसिफिक किया 0.1, ठीक है। और ये मैंने लिख रखा है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, और x आपका 4 लेके चल रहे हैं, तो मतलब आसान भाषा में बोलो, नोटेट कर दूं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा कॉस्ट फंक्शन जो है उसमें अभी हमने x को इधर बनाया कुछ, ठीक है। इसको चेंज भी करेंगे, मैं फंक्शन ऐसे ही बनाऊंगा, इसको चेंज भी करेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ तक क्लियर सभी को? दीपा, सुनील, धैर्य? Rahul, Rahul, learning rate and information gain are same thing, right? नो, लर्निंग रेट इज टोटली डिफरेंट, कि आप कितना बड़ा स्टेप साइज लेना चाहोगे। जस्ट टू कवर बेसिक से तो कैसे कवर करूँ, लेकिन चलो कवर कर देता हूँ। लर्निंग रेट की आपका कितना बड़ा स्टेप साइज होगा। देखो जहाँ पे सबसे आपका फंक्शन मिनिमा है तो उसको ग्लोबल मिनिमा या लोकल मिनिमा बोल देते हैं, या लोकल मिनिमा ये बोल देते हैं, ठीक है। ग्लोबल मिनिमा या लोकल मिनिमा बोल देते हैं, जहाँ पे आपका फंक्शन सबसे बड़ा हो। लर्निंग रेट आपका ये डिसाइड करता है कि आपका जो स्टेप साइज है वो कितना बड़ा हो। मैं दिखाऊंगा वो, बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैंने एग्जांपल ही उठाया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कि मैंने x अभी 4 लिया तो मेरा x ऐसे का ऐसा आ गया। डेरिवेटिव बेसिकली क्या होगा, मेरे को इस सेल फ्रीज करना होगा इधर, ठीक है। तो मैंने डेरिवेटिव क्या किया है, 0.1 टाइम्स 2x, 2x क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x फिर इज 2x। हमारा न्यू x क्या होगा बेसिकली, फिर दिस माइनस दिस, एग्री। और अब हमारा ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये नया, ये हमारा अब नया x हो जाएगा। इतने तक एग्री कर रहे हो सभी? यस, तो बेसिकली हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अगर टेक्निकली देखा जाए तो। ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेट नहीं करे, ग्रेडियंट डिसेंट एक टेक्निक है जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने x को अपडेट करने के लिए, अपने x को अपडेट करने के लिए। एक सेकंड, अरे यार स्टॉप शेयर कैसे हो गया, एनोटेशन खोल रहा था मैं। बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट एक ये मेथड है जिससे आप, क्योंकि आपको यहाँ पे आना है, ये आपका लोकल मिनिमम है जहाँ पे आपका फंक्शन सबसे मिनिमम होगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसा मेथड है जो आपकी किसी भी वैल्यू, मतलब जिस आपका फंक्शन किसी चीज पे डिपेंड करता होगा तो उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट आपकी मदद करता है, जिससे आप अपने उस वैल्यू को ऐसे ढूंढ लो जहाँ पे आपका फंक्शन सबसे मिनिमम हो जाए। जैसे आसान भाषा में बोलूं तो आपका कॉस्ट फंक्शन फॉर लीनियर रिग्रेशन क्या होगा, जैसे y ओरिजिनल माइनस m x प्लस c, इसमें दो वेरिएबल्स आ जाते हैं जिसको रिड्यूस करना चाहोगे आप, जिससे आपका कॉस्ट फंक्शन सबसे MSC बोल देते हैं इसको, डिवाइड बाय n बोल देता हूँ, समेशन। तो आपकी दो चीजों पे आपका फंक्शन डिपेंड कर रहा है, एग्री। तो इसकी मैं क्या वैल्यू लूं और इसकी मैं क्या वैल्यू ढूंढूं जहाँ पे मेरा सबसे मिनिमम हो जाए मेरा MSC, आर यू गेटिंग इट। लेकिन जो हमारे पास करंटली फंक्शन है वो सिंपल एक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है पढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने इसको सिर्फ x लिया है। इसकी डिफरेंशिएशन भी आसान है, सब कुछ आसान है, इसलिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस यस, मैं वही तो पूछ रहा हम था कि जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसका कोई स्पेशल वो टर्म है? नया x है, ये आपका x हो जाएगा, जैसे मतलब ये आपका इस कैलकुलेट क्या करते हैं, इस टेक्निक को ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। सो यू कैन से वी आर यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक टू अपडेट द वैल्यू ऑफ x so that we can minimize our cost function, as simple as that. ये एग्जैक्टली वही सुनना चाहता था।
ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अब 3.2 आ गया, अब 3.2 आ गया तो इस फॉर्मूले को मेरे को बस नीचे डालने दो। तो 3.2 इंटू गाइस कोई कैलकुलेट करेगा मेरे 3.2 इंटू 0.1, इट विल बी 0.32, ठीक है 0.32, और 0.32 को मैं माइनस करूंगा इसको, तो सिंपली आई एम मूविंग दिस फॉर्मूला डाउन। तो आपका ये क्या हुआ, ये आपका हुआ है दिस लर्निंग रेट टाइम्स 2 इंटू C9, जैसे 3.2 इंटू 3.2, तो शायद कितना बनेगा 9 पॉइंट कुछ समथिंग बनेगा शायद, और वो आपका इधर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को भी मैं नीचे करूं तो आपका अब देखो 4 से 3.2 आया, 3.2 से अब ये 2.56 हो गया, ठीक है। मैं बस ऐसे एक्सटेंड करता जा रहा हूँ इस फॉर्मूले को। दिख रही है वैल्यूज कैसे क्या हो रहा है। हम 4 से चले, 4 से हमने क्या किया, हमने लर्निंग रेट टाइम्स 2x, और उसको हमने माइनस किया जिससे हमारे पास न्यू x आया। न्यू x को हमने इधर लेके आया, फिर ऐसे ऐसे करते करते now so you can see the value is gradually decreasing, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 2.04, फिर उससे 1.6, 1.3, 1.04, और ये डिक्रीज होता होता देखो 0.4 तक चला गया। एक सेकंड में नंबर ऑफ इटरेशंस भी लिख लेता हूँ। तो वैल्यू देखो कितनी छोटी होगी। हमें पता है इस फंक्शन से कि सबसे मिनिमम वैल्यू होगी 0, ठीक है, जहाँ पे सबसे ये अच्छे से जाएगा, समझ रहे हो। तो अब हमारी वैल्यू हम कहाँ से चले थे, 4 से चले थे, और धीरे धीरे हम कितने 0.00066 तक आ चुके हैं। और लेकिन अब एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को याद हो, आई टोल्ड यू वन थिंग, देखो अब ध्यान से देखना, फंक्शन अगर आपको याद हो तो फंक्शन आपका ये है x ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू द डिफरेंशिएशन, जो ये हमेशा 2x रहेगा, तो इस चीज को तो भूल ही जाते हैं, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब आपका x नॉट छोटा होता है, सपोज कर लो पहले तो 4 था, ठीक है, तो 4 माइनस 2 इंटू 4, जैसे 0.1 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आपका 0.8 कुछ बना। सपोज कर लो मेरा x, सपोज कर लो ये वैल्यू उठा लेते हैं, मेरा x हो गया 0.17 इंटू 2 कर दिया मैंने इसको। अब इसको इंटू मैं 0.1 कर रहा हूँ, तो आसान भाषा में हो क्या रहा है, आपके शुरू में तो बड़े साइज होते हैं लेकिन आखिरी में छोटे साइज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी x की वैल्यू भी छोटी होती जा रही है, और जैसे x की वैल्यू छोटी होती जा रही है, आपका लर्निंग रेट तो वही है, लेकिन आपकी x की वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो आपके स्टेप साइज अपने आप छोटे छोटे होते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे 4 से देखो कितना बड़ा जंप है, 3.2, फिर 2.5, फिर 2, अब लेकिन इसके बाद देखो कितने स्मॉल 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 जंप्स हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो पूरा फंक्शन एक किस्म से x पे डिपेंडेंट है, तो आपका x ओल्ड, जो कि सपोज कर लो जैसे लगा लेते हैं 0.04 लगा लेते हैं इसको, ठीक है, माइनस 0.1 इंटू 2, बेसिकली यही वैल्यू, तो इसको मैं फिर से 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना छोटा होगा ये, अज्यूमिंग के पीछे का कुछ नंबर ही नहीं बनता है, वो सोच लेते हैं। तो 0.04 इंटू 0.1 करूंगा, या 0.01 करूंगा, या 0.1 भी कर लेता हूँ, तो कितने पीछे तक जाएगा, तो आपका चेंज जो होता है एक्स में वो बहुत छोटा होने लगता है टाइम के साथ। इसलिए आपका बोलते हैं हमेशा कि फंक्शन चलता तो अच्छी स्पीड से है, लेकिन धीरे 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 छोटा हो जाता है, क्योंकि इसको पहुंचना है अल्टीमेटली। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो डू वी डू एनीथिंग टू सॉल्व दिस, ऐसा कुछ है? ये अच्छी चीज है ना, आप मिस नहीं करना चाहोगे अपने फंक्शन को। अगर आपको ऐसा करना है तो आप लर्निंग रेट को चेंज कर सकते हो, यू कैन से 0.5, तो देखो आपकी एक एक फंक्शन में कन्वर्ज हो गया सिर्फ एक ही इटरेशन में। अब किसी को ये शक था कि वो 0 से ऊपर जाएगा
नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा 0 से ऊपर ऐसे। तो 0 से ऊपर, अरे इसमें एक्सेल में ड्रॉ करने का फीचर दे दिया इन्होंने। तो x 0 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 0 माइनस लर्निंग रेट टाइम्स 2 इंटू एक्स। एक्स कितना हो गया? 0, 0 माइनस 0 0। तो इसलिए वो चेंज ही नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग इट नाउ? फंक्शन क्या है आपका नया? सपोज कर लो, देखो मेरी पहली इटरेशन, इसको देखते हैं पहले। तो हमारा x आया 4, 4 माइनस लर्निंग रेट कितना है? 0.5, 2 इंटू 4 8, 8 का 0.5 4, सो 4 माइनस 4, तो आपका x न्यू हो गया 0, करेक्ट? जो कि इधर है। अब x न्यू 0 हो गया तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ फिर से। 0, ठीक है, 0 माइनस लर्निंग रेट इंटू 0 इंटू 0 नहीं होगा, सॉरी, हाँ 0 ही होगा, सॉरी, एक सेकेंड, क्या हो गया मेरे को एकदम से। अच्छा, 2 इंटू 0 लर्निंग, हम डिफरेंट डेरिवेटिव डाल रहे हैं इधर, तो ये हो गया 0, 0 इंटू लर्निंग रेट 0, 0 माइनस 0 0, तो उससे ऊपर वो जाएगा ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो ऐसा केस सिनेरियो। और अगर आपको अब डाउट हो, एक सेकंड, तो पहले तो मुझे सब कुछ इरेज करना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ लर्निंग रेट चेंज किया। आप सपोज कर लो x को -4 रखते हैं, अभी सिलेक्ट नहीं होगा क्या? अब सपोज कर लो x को पहले तो बड़ी बड़ी वैल्यूज रख के देखते हैं, 64, तो एक ही बारी में देखो एक, क्योंकि देखो आप सोच रहे होगे कि ये तो हमेशा पहली इटरेशन में होगा, नहीं, क्योंकि सिर्फ क्योंकि आपका फंक्शन यहाँ पे x, तो इसलिए 0.5 लर्निंग रेट एक किस्म से ट्रिक है जो आपको फर्स्ट पार्ट में दे रही है। लेकिन सपोज कर लो मैं इसको 0.9 करता हूँ, तो देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके अल्टीमेटली देखो पहले वो पॉजिटिव था, एकदम से कितना बड़ा नेगेटिव गया, फिर वापस पॉजिटिव, फिर वापस नेगेटिव, वापस पॉजिटिव, वापस नेगेटिव। मतलब हो क्या रहा है? वो ये रहा है, इसको नहीं यूज करते हैं, जूम का यूज करते हैं। वो ये रहा है कि आपका फंक्शन जो है वो इधर से इधर कूद रहा है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि लेकिन अल्टीमेटली वो पहुंच कर रहा है, वो पहुंच तो नीचे ही रहा है ना। अब सपोज कर लो मैं इसको बोलता हूँ लर्निंग रेट छोटा करते हैं। अब मैं लर्निंग रेट, क्योंकि लर्निंग रेट इतना बड़ा है तो इसलिए वो इतनी बड़ी बड़ी जंप्स ले रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव से एकदम से पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे स्मॉल हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। अगर हम इसको 0.00001 कर दूं, तो देखो एक बार 40 इटरेशन हो गए हैं, वो 63 से नीचे भी नहीं आया। अगर आप लर्निंग रेट बहुत छोटा कर दोगे, अगर आप लर्निंग रेट बहुत ही ज्यादा छोटा सा यहाँ पे हो, आर यू गेटिंग इट? संदेश्वर, धैर्य, दीपा, सुनील। तो इसलिए लर्निंग रेट बहुत एसेंशियल है टू फाइंड द बेस्ट लर्निंग रेट, की कौन सा लर्निंग रेट हो जो मेरे को सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे। ठीक है, तो लर्निंग रेट को थोड़ा सा 0.2 करके देखते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ दिस वे। अब इसको माइनस करके देखते हैं, तो -40 करके देखते हैं इसको, देखो फिर भी रिड्यूस होते होते वो पीछे की तरफ से आ रहा है। ठीक, और स्टिल वो बिल्कुल 0 के आसपास ही आ चुका है। आर यू गेटिंग? देखो यहाँ पे -0.046 है, यहाँ पे -0.009, 0.00011, इसको राउंड ऑफ भी करोगे तो भी 0 ही निकलेगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप कोई भी नंबर बोलो इसको, इट विल बी कमिंग इटसेल्फ टू दिस, यू कैन से स्मॉल नंबर। 0.3 कर देता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा। इसको 1 कर दूंगा, तो देखो 1 करके देखते हैं लर्निंग रेट। तो अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, अगर मैंने 1 लर्निंग रेट तो हुआ क्या? वो ऐसे ही कूद रहा, उधर ही कूद रहा है, 100 + 102 - 102, तो उधर ही फंस गया वो।
इसलिए 1 लर्निंग रेट कभी सजेस्ट नहीं होता, हमेशा बोलते हैं लर्निंग रेट को 1 से छोटा रखना चाहिए। दैट इज द रीजन। गेटिंग द पॉइंट गाइस? Yes. Is there a technique to find out like the most optimized? लर्निंग रेट, Yes. ग्रेड सर्च। That is आप trial and error only, but like there is no like uh, nobody figured out a like mathematical way to do it like optimistically. ऑप्टिमाइजर से जो अपने आप लर्निंग रेट डिसाइड कर लेते हैं, जैसे एडम एडाग्राड जो हम सब पढ़ चुके हैं, वो वाले, वो अपने आप फिगर आउट कर लेते हैं कि विच वन इज द नहीं, बेस्ट वन। वो तो अपने आप like that is a black box to us ना, वो तो अपने आप करता है ना इंटरनली, हम थोड़ी मतलब कुछ करते नहीं, हैं। हमारे I'm लिए just- नहीं, फिर हमारे लिए आपको इट विल बी लाइक यू विल हैव टू डू द कैलकुलस। आप खुद ही कैलकुलस करके देखो एक बार, जो आपका कॉस्ट फंक्शन है, तो एक कॉस्ट फंक्शन चेंज होता रहेगा, आप कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से कैलकुलस करके देखो, यू सी, आप उस पर एक इटरेशन खुद के दिमाग की, मैं इसको लर्निंग रेट को इतना लूंगा तो ये हिसाब से ट्विगल कर सकता है। तो वो आप अपनी एनालिसिस से आपने कैलकुलस करके देखो कॉस्ट फंक्शन का, उससे आपको पता चल जाएगा, तो उससे हो सकता है वो। दीपा क्लियर? Yes, Rahul, clear. तो सबसे आसान तरीके से ये समझा दिया है। अब देखो इसमें ये एग्जांपल जो था, ये एग्जांपल काफी आसान लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस्ट फंक्शन नहीं है, लेकिन ओरिजिनली जब आपका कॉस्ट फंक्शन होता है, देखो जैसे आपका मीन स्क्वायर्ड एरर ले लेते हैं, ठीक है, इसकी कैलकुलस आप लोग खुद ही कर लेना। जैसे y प्रिडिक्टेड, या फिर y ओरिजिनल ले लेते हैं पहले, माइनस y प्रिडिक्टेड, मतलब आपका कॉस्ट फंक्शन देखो ओरिजिनल तो एक किस्म से कांस्टेंट है, ये हमेशा वही रहेगा। ज्यादातर आपका प्रिडिक्शन आ रहा है, प्रिडिक्शन बेसिकली होता है mx प्लस सी, मतलब आपकी दो वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, ये दो ऐसी चीज है जो वेरिएबल्स है, ये चेंज हो सकती है, ठीक है, इसको मैं 100 लूँ या 200 लूँ, क्या लूँ, और ऐसे ही मेरा मॉडल क्या ले। तो आपकी जो इसमें डिफरेंशिएशन होगी वो दो चीजों के रिस्पेक्ट में होगी, एक होगी कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू m, जो कि आपका स्लोप है, तो इसमें हो जाएगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ किस किस के रिस्पेक्ट में होगी। एक तो ये हो गया, और दूसरा होगा आपका कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इनके मैं फंक्शंस लिखूँ आपको, तो इसके फंक्शन होंगे, ये आपका नया स्लोप, न्यू स्लोप न्यू इक्वल टू स्लोप ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्लोप ओल्ड। आर यू गेटिंग इट? ओल्ड बोल लो या स्लोप बोल लो, बात सेम है। ऐसे ही आपका इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट न्यू इक्वल टू आपका इंटरसेप्ट ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू कॉस्ट फंक्शन डेरिवेटिव बाय इंटरसेप्ट, ठीक है। आपका कोई भी कॉस्ट फंक्शन हो, आपका लॉग लॉस हो, आपका कोई भी कॉस्ट फंक्शन हो, क्रॉस एंट्रोपी हो, लॉग मैक्सिमम लॉग लाइक्लीहुड हो, तो कोई भी कॉस्ट फंक्शन होता है, पहली बात कॉस्ट फंक्शन बना ही ऐसे जाते हैं जिनकी डिफरेंशिएशन हो सके। आपको कभी ऐसा कॉस्ट फंक्शन नहीं मिलेगा जिसकी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती। तो कॉस्ट फंक्शन ऐसा बनाना चाहिए हमेशा जिसकी डिफरेंशिएशन, और जितने भी कॉस्ट फंक्शन कोई भी मॉडल यूज करता है, वो सभी के सभी डिफरेंशिएबल्स होते हैं, सभी के सभी डिफरेंशिएट हो सकते हैं। जब डिफरेंशिएट हो सकते हैं तो हम उसमें ग्रेडियंट डिसेंट लगा सकते हैं। क्लियर सभी को? एक सेकंड देना गाइस, एक सेकंड देना एक बार। हेलो, हाँ सर जी।
1 मिनट और देना गाइस, बस 1 मिनट और। ओके, तो गाइज ये बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। और इसमें हम जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर रिग्रेशन के लिए या फिर कोई भी रिग्रेशन, आपका कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेशन होती है और डेरिवेटिव निकलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपके कॉस्ट फंक्शन को अपडेट किया जाता है। सो दिस इज हाउ द होल थिंग इज। आई बिलीव इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? Yes. Yes. यस। तो आसान सा लीनियर आपका आसान सा कॉस्ट फंक्शन उठाया हमने, उसकी डेरिवेशन आपकी ऐसी होगी। एंड ओके, ओके, सो एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आपको इसको कहीं रोकना तो ऐसे रोक तो नहीं सकते हो, आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि 10 इटरेशन से आगे ना जाए, 12 इटरेशन से आगे ना जाए। जैसे आप उस दिन बोल रहे थे सुनील उस टाइम, तो आप इसको रोक तो नहीं सकते। आप यू कैन स्पेसिफाई द इटरेशंस आर 15 जस्ट स्टॉप ओवर देयर। तो ऐसे आप करके इसको चेंज कर सकते हो। यू कैन सी जस्ट 0.2 से तो कितनी स्पीड से नीचे है, तो इनिशियल जो चेंजेस है वो बहुत ज्यादा है, उसके बाद आपका जो चेंज है बहुत माइन्यूट 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 सा है। So in a very simple class, ये है gradient descent, nothing more complex, nothing this। तो कभी भी gradient descent हो रहा है तो उसके कॉस्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसको डिराइव करता है, उसको माइनस करता है आपके ओल्ड में से, और बस अपने आप को अपडेट करता रहता है until unless it reaches a minima। तो उसको क्योंकि जितने भी कॉस्ट फंक्शन है वो अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। So this is a core concept of it। So yes guys, this is the gradient descent concept। ये क्लियर हुआ आई बिलीव सभी को। अब इसके बाद उठाते हैं पीसीए। उससे पहले ले लेते हैं एक 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है। फिर पीसीए उठाएंगे, फिर एक 15 मिनट का ब्रेक, फिर टाइम सीरीज, ठीक है। तो इट्स 2:50, एवरीवन रिटर्न बाय 3:05। इज इट ओके? Yes. Yes. ओके।
I believe everyone is back. I'm back. Yeah, I'm back. Yes. Okay, so just give me a second. Let me share the screen. अब एक बार PCA देख लेते हैं. Okay, now let's talk about PCA. PCA stands for Principal PCA stands for Principal Component Analysis. अब इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं. पहली बात तो इन डेप्थ. First of all, it is used for dimension reduction. Dimension reduction. ठीक है. The components that it gives out, मतलब जो बेसिकली आसान भाषा में जो फीचर्स ये बाहर निकालेगा are not at all related. Third, the first component will always describe the maximum variance ठीक है. तो बेसिकली डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक है. कंपोनेंट्स जो बाहर निकलते हैं जैसे PC1, PC2, PC3, दे विल बी नॉट एट ऑल रिलेटेड. ठीक है. एंड हमेशा जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होना है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेरिएंस फॉलो डिस्क्राइब करेगा पूरे डेटा की. देन PC2, PC3, मतलब हमेशा ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे ये. ठीक है. तो डायमेंशन रिडक्शन के लिए यूज करते हैं. डायमेंशन रिडक्शन क्या होती है आसान भाषा में? सपोज करो आपके पास एक डेटा है. यू वांट टू प्रेडिक्ट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है. आपके पास स्टोर्स इंफॉर्मेशन है. ठीक है. प्राइस है, कंप्यूटर्स प्राइस है. तो आपके पास एक किस्म से तीन इंडिपेंडेंट फीचर्स है और एक टारगेट है. ये आपका टारगेट लगा लो और ये तीनों बेसिकली आपके इंडिपेंडेंट लगा लो X. ठीक है. तो अब मेरे को तीन फीचर्स में से मेरे को एक फीचर निकालना हो सिर्फ या दो फीचर निकालने हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है. अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक मतलब आपको Y की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल नॉट एट ऑल रिक्वायर Y. ठीक है. आपको Y की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड एक ये अनसुपरवाइज टेक्निक है. ठीक है. एंड एक चीज और बोलनी थी. कंपोनेंट्स जो आते हैं जैसे आपको एक फीचर आउट ऑफ इसे चाहिए, मतलब तीन का मेरा एक फीचर बन जाए. और पहली बात, जो इसके फीचर्स आएंगे वो कभी ऐसा नहीं कि स्टोर को पिकअप करके उसने दे दिया, ऐसे प्राइस को पिकअप करके दे दिया, सिर्फ कंपटीशन प्राइस को पिकअप करके दे दिया, ऐसा कभी नहीं होगा. इन तीनों को मिक्स मुक्स करके कुछ ना कुछ करके ये लगा लो, एक सिमेट्री बनाएगा और एक आपको एक कंपोनेंट देगा जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस से ज्यादा रिलेटेड है, स्टोर से ज्यादा रिलेटेड है, कंपटीशन प्राइस से रिलेटेड है. ऐसा कुछ नहीं है. आसान भाषा में इसको इंटरप्रेट करना काफी मुश्किल होता है. मैं ही नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, लेकिन इंटरप्रेट करना काफी मुश्किल होता है. यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि PC1 क्या क्या कह रहा है, किस तरफ जा रहा है, किसका नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ.
ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एक और पॉइंट लिखना था इधर, आई बिलीव डायमेंशन रिडक्शन एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, डायमेंशन रिडक्शन एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। ओके, तो बेसिकली डायमेंशन जैसे सपोज कर लो, डायमेंशन का भी थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा लो, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट सपोज कर लो x, y, ठीक है। बेसिकली मतलब दो कंपोनेंट्स ऑफ कोर्स 3D हो जाए ना, क्या चाह रहा हूँ कि आपके जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस एंड कंपटीशन प्राइस और आपकी सेल्स। तो सपोज कर लो इस पॉइंट को उठाऊंगा तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तो ये 3 डायमेंशनल डेटा है, 3 डायमेंशनल डेटा। एक और कॉलम हो जाएगा तो 4 डायमेंशनल, 2 कॉलम्स हट जाएंगे और एक ये रह गया, ये रह गया, तो 2 डायमेंशनल। तो आपके इंडिपेंडेंट फीचर्स बेसिकली डिटरमाइन करते हैं आपका डेटा कितना डायमेंशनल है। इसको ऐसे बोलते हैं बेसिकली कि इतना डायमेंशनल डेटा, इतना डायमेंशनल डेटा है। अब पीसीए क्या करता है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें। अब आपको कई बार आपके इतने सारे, पहली बात मैंने जैसे एक बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, बिजनेस में पीसीए बहुत रेयरली यूज करते हैं, बहुत ही रेयरली यूज करोगे आप बिजनेस में पीसीए को। पहली बात क्यों, क्योंकि पीसीए आपका क्या करता है, आपके सपोज को लो कंपोनेंट्स बना देगा, कुछ ना कुछ आपके कंपोनेंट्स बना देगा, PC1 PC2 ऐसे करके, जिससे आप डिराइव नहीं कर पाओगे कि देखो इसको इंटरप्रेट करना इम्पॉसिबल नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप बहुत क्लियरली बोल सकते हो अच्छा ऐसा है, ऐसा है। आसान भाषा में बोलूँ क्यों इसको बिजनेस में यूज नहीं करते हैं। सपोज को एक फीचर है आपका सेल्स का, ठीक है, और आपका प्राइस का, तो हमेशा आपका जो बिजनेस है वो आपसे पूछेगा कि भाई मेरे प्राइस का इम्पैक्ट कैसा है। या फिर सपोज को एक और फीचर लगा लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका बिजनेस आपसे पूछेगा कि भाई मेरा जब डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर जाता है, नीचे जाता है, या मेरा प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो मेरी सेल्स कैसे इंपैक्ट होगी। लेकिन आप जब आप उसको बोलोगे सर मेरे को उसका तो पता नहीं, लेकिन मैंने इससे एक PC1 बना दिया है, उसका तो मेरे को पता है कि हाँ भाई मतलब ये PC1 के रिस्पेक्ट में कैसे ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन इसका नहीं बता सकता मैं। इसका बस ये बता सकता हूँ कि PC1 में 2 पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लगते हैं बनने में और 1 पार्ट प्राइस का लगता है। मैं ये बता दूंगा कि PC1 थोड़ा सा बना कैसे है, मतलब इसके एक सिंगल आइगन वेक्टर में, एक सिंगल आइगन वेक्टर में दो पार्ट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के, 1 पार्ट प्राइस का है। लेकिन हाँ सर मैं ये एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाएगा ऊपर कैसे नीचे, तो बिजनेस सबसे पहले तो आपको लात मारेगा कि भाई तेरे से काम ही नहीं करवाना, निकलो। तो इसलिए पीसी इज वेरी रेयरली यूज्ड इन बिजनेस, ठीक है, और यही इसका मेन मोटिव है, इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं। बट ये स्टिल इट इज अ वेरी गुड अप्रोच डायमेंशन रिडक्शन के लिए, और क्या ही चाहिए जब आपके फीचर्स भी घट रहे हैं। तो पीसी आप जब यूज कर सकते हो जब आपको अपने बिजनेस को बताना नहीं है कि कौन सा फीचर क्या करेगा, क्या फीचर क्या करेगा, उसको से कोई चीज लेना देना नहीं। उसको ऑब्जेक्टिव है कि बस ये बता दो कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, या फिर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या फिर कितना होगा, उसको लेना देना नहीं है, तो आप पीसी यूज कर सकते हो। तो डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब पीसी काम कैसे करता है, दैट इज यू कैन से काइंड ऑफ ट्रिकी। पीसी काम कैसे करता है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट नाउ। ठीक है, आई बिलीव यहाँ तक सभी को क्लियर है। क्लियर? Yes. तो सपोज कर लो आपके पास एक 2 इंडिपेंडेंट फीचर्स, मैं उनको बस प्लॉट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट फीचर आपके पास। तो आपका डेटा था सेल्स लगा लो, डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो, प्राइस लगा लो, ठीक है। तो 2 इंडिपेंडेंट फीचर्स है जो कि एक्स है, ठीक है। और आपको भाई अपना ये लगा लो इन 2 में से एक फीचर बनाना है। सिर्फ कितने फीचर बनाने हैं, सिर्फ एक फीचर बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस का एज्यूम कर लेते हैं, कोई ना कोई रिलेशन लगा लेते हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है तो हम प्राइस कम रख लेते हैं क्योंकि ज्यादातर सेल करनी चाह रहे हैं हम, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, कंपटीशन प्राइस रख लेते हैं। एक सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम कंपटीशन प्राइस रख लेते हैं। ठीक है, जब कंपटीशन प्राइस बढ़ रहा है तो हम भी एक किस्म से अपना प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि हमें भी मार्केट में ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे रख रहे हैं।
तो इधर लगा लेते हैं कंपटीशन प्राइस, इधर लगा लेते हैं प्राइस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सा कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है। एक दो पॉइंट्स ले लेते हैं क्योंकि उनको ये मूव करेंगे इधर उधर। बैक एंड में वर्किंग ऐसी ही है, लेकिन हाँ जैसा आपको सुनना मैं वैसा भी सुना दूंगा। कोवेरिएंस और सिंगुलर वेक्टर डिकम्पोजिशन सुनना, वो भी सुनाएंगे आपको। तो सपोज कर लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। नहीं इतना तो दूर नहीं करते हैं, थोड़ा सा चलो इतना कर लेते हैं कि ये पॉइंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है बेसिकली। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे एक दो पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स ले लिए हमने कि कंपटीशन प्राइस बढ़ा रहा है तो हम भी साथ साथ अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपका इंडिपेंडेंट फीचर का डेटा ऐसा है। तो पीसीए करने के लिए सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होगा वो आपके एक्स के पॉइंट्स का मीन निकालेगा, वाई के पॉइंट्स का मीन निकालेगा, ठीक है। और मीन निकालने से आपको मतलब वाई मीन या और एक्स मीन आपको सबसे सेंटर मोस्ट पॉइंट मिल जाएगा, करेक्ट। मतलब आपको सपोज कर लो अपने ग्राफ में सबसे सेंटर मोस्ट पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा आपका एक्स मीन और वाई का मीन, करेक्ट। यस Yes. ओके साउंड्स कूल। अब इसके बाद होता क्या है, ये पॉइंट ओरिजिन पे लेके आते हैं हम। ये पॉइंट आ गया हमारा ओरिजिन पे, ठीक है। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारे पॉइंट्स अभी भी ऐसे स्केल्ड रहेंगे। एक पॉइंट इधर है, थोड़ा सा ऊपर है इसके, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट बिल्कुल इधर है, दो पॉइंट ऐसे है। तो रिलेटिव जो डेटा फीचर्स है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इधर हमारा प्राइस लगा लो, इधर हमारा कॉम्पिटिटर्स प्राइस लगा लो, तो हमारे रिलेटिव फीचर्स डेटा के चेंज नहीं हो रहे हैं, पहली बात, ठीक है। हमारे डेटा के रिलेटिव फीचर्स चेंज नहीं हो रहे हैं। एक आसान भाषा में बोलो तो डेटा को स्केल कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल आसान भाषा में, लेट मी टेक अ लाइन, आपका एल्गोरिदम एक प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, एक प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करेगा जिसपे जो प्रोजेक्शन एरर है वो सबसे मिनिमम हो। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोजेक्शन एरर, जैसे कि ये पॉइंट ले लेते हैं, एक सेकेंड, एक ये ले लेते हैं और इस पे हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं। प्रोजेक्शन होता क्या मैं बता देता हूँ, जैसे यार लाइन तो ऑरेंज ही रखते हैं, अब कलर चेंज करते हैं। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका बिल्कुल इस पे, एक इसका बिल्कुल इस पे, इसका बिल्कुल इस पे। तो दीज आर नोन एज प्रोजेक्शन एरर्स। प्रोजेक्शन एरर्स। तो बेसिकली आपका एल्गोरिदम एक, पहली बात ये प्लेन है, इसको हाइपर प्लेन बोल लो, लाइन बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो, लेकिन वही बात है स्टैटिस्टिकली करेक्ट होना चाहिए। 4D में हमेशा हाइपर प्लेन होगा, 3D में प्लेन होगा, 2D में लाइन होगा, 1D में डॉट होगा, ठीक है। तो बेसिकली योर PCA tries to find a hyperplane for which the projection error can be minimum, for which the projection error can be minimum, ठीक है। अब वो कौन सा प्लेन है ये लगा लो, सपोज कर लो मेरा कोई दूसरा प्लेन है जो ऐसे जा रहा है, या एक तीसरा प्लेन लगा लेते हैं। तो किस वाले प्लेन पे जिसपे सबसे मिनिमम प्रोजेक्शन एरर होगा, पहले तो उस प्लेन को डिसाइड किया जाएगा कि ठीक है भाई ये वाला प्लेन सबसे अच्छा है, ठीक है। फिर उस पे हम प्रोजेक्ट पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करते हैं कि अच्छा एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, ये एंड ये। और इस पे जो इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा PC1 निकल के बाहर आ जाता है। आसान भाषा में PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस tries to find a plane for which the projection error of your points is the minimum, or you can say the summation of projection errors of your points is minimum. That is what PCA tries to do, as simple as that. And
projection error is minimum, and suppose kar lo this orange plane is basically the best plane for which the projection summation of projection error is minimum. So you can say kind of finalize this projection error. I'll take this projection error, okay, and just give me a second. I'll finalize this projection error, and I'll finalize this plane, and it will become my PC1. अब बात करते हैं, सपोज को देखो टू डायमेंशनल में सेंस क्या करता है कि आप वन प्लेन निकाल दो तो आपका PC1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा एक्सटेंड करने दो कैनवस को। आपका सपोज को ऐसे, अब इसके बाद होता क्या, सपोज करते हैं कि आपका टू डायमेंशनल डेटा था, तो आपका PC1 ऐसे निकल के आ गया कि भाई इस वाले प्लेन पे जो आपका प्रोजेक्शन समेशन ऑफ प्रोजेक्शन एरर्स है पॉइंट्स का सबसे मिनिमम है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेन, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारे प्लेन ट्राई किए लेकिन सबसे मिनिमम प्रोजेक्शन एरर इस पे, तो दिस इज द बेस्ट प्लेन। और ये वाला प्लेन आपका PC1 बन के निकल के बाहर आ जाएगा। और ये PC1 आप जब भी रखोगे जब आपके पास टू डायमेंशनल डेटा है। इट डजंट मेक सेंस कि टू डायमेंशनल डेटा में से आप 2 PC निकालोगे, 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालोगे, इससे अच्छा तो है आप अपना ओरिजिनल डेटा यूज कर लो, ठीक है। लेकिन फिर भी दुनिया निकाल लेती है, क्यों? क्योंकि आपका जो एक सबसे पहले वाला कंपोनेंट निकल के आएगा वो सबसे ज्यादा वेरिएंस एक्सप्लेन करेगा, उसके बारे में बात करेंगे, नॉट वरी, ठीक है। तो 2 में आपने एक PC निकाला, सपोज कर लो आपके पास 3 डायमेंशनल डेटा है और आपको इसमें से 2 PC निकालने हैं, तो सबसे पहला PC तो हमेशा ऐसे ही निकलेगा कि भाई सबसे पहला प्लेन उठाया जिसमें सबसे मिनिमम प्रोजेक्शन एरर है, वो प्लेन फाइनलाइज किया। अब दूसरा PC कैसे निकलता है मैं बताता हूँ। दूसरा PC आसान भाषा में, जो आपका ये सपोज कर लो हमारा ऑरेंज प्लेन सबसे बेस्ट प्लेन है, हमारा ऑरेंज प्लेन सबसे बेस्ट प्लेन है, ठीक है, हमारा ऑरेंज प्लेन सबसे बेस्ट प्लेन है। तो अब आपके इस ऑरेंज प्लेन के बिल्कुल 90 डिग्री पे एक कंपोनेंट बना दिया जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे कंपोनेंट बना देंगे, एंड दैट विल बिकम योर PC2। अगर एक और PC चाहिए क्योंकि 4 डायमेंशनल डेटा है, तो बिल्कुल इसके भी एक दोनों के परपेंडिकुलर एक और बना देंगे। परपेंडिकुलर क्यों बना रहे हैं, पहली बात ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हम परपेंडिकुलर ही क्यों बना रहे हैं, 30 डिग्री पे क्यों नहीं बना रहे, 40 डिग्री पे क्यों नहीं बना रहे। परपेंडिकुलर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वी वांट कि जो भी हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकले उसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं हो, तो एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न हो, बिल्कुल भी सेम नहीं हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? यस। So Yes. this is the crux of PCA, बस इतना था, इतना आसान से PCA था। अब एक चीज बता देता हूँ, चलो पहले तो थोड़ा सा और इन डेप्थ पकड़ लेते हैं इसको। Rahul, just one Mhm. question. Mhm. That means हमें PCA से पहले we should do the correlation treatment, right? आप जो बोलना चाह रहे हो कोवेरियंस बोलना चाह रहे हो, मेरे को पता हाँ, है, sorry, yeah. ठीक है। क्यों बोलना कोवेरियंस क्यों बोलना चाह रही हूँ मैं उसको रिलेट कर दूंगा। बैक एंड वर्किंग PCA की ऐसी है, उसके लिए आपको आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस लेकिन मैं कोवेरियंस से भी रिलेट कर दूंगा इसको। आपको कभी कुछ नहीं कैलकुलेट करना, आपको बस PCA डॉट फिट डॉट प्रेडिक्ट करना है, डॉट फिट डॉट ट्रांसफॉर्म करना है, सॉरी प्रेडिक्ट नहीं होता इसमें। तो एक सेकंड दो, मैं बताता हूँ कोवेरियंस का भी, एक सेकंड। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, ठीक है, एक सेकेंड। आपको कभी कुछ कैलकुलेट नहीं करना, कोरिलेशन कैलकुलेट करने से कुछ नहीं होता है। बैकएंड पे वो कोवेरियंस कैलकुलेट करता है, मैं बता देता हूँ क्यों। पीसीए सिर्फ टेक्सचुअल डेटा पे करता है काम या कुछ और भी डेटा पे टाइप पे काम करता है? ये हर सारे न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है। बस एक छोटा सा अजम्पशन है कि आप मानते हो कि आपका डेटा लीनियर है, तो मतलब PCA वर्क्स वेरी वेल विद लीनियर डेटा, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करने वाले थे, यस एक चीज और, कहाँ पे था हमारा पेंसिल, ये रही, ठीक है। सपोज को एक प्लेन है, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। और there are various points, let's kind of take the points as green in color,
यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो यार, ठीक है, जस्ट टू काइंड ऑफ मूव इट इजिली। हमने इसको सेंटर कर रखा है, ये 0 पे आ रखा है और हमारा एक प्लेन निकल के आया ऐसा, ठीक है। एंड सपोज कर लो ये अपना वो वाला प्लेन है जो सबसे बेस्ट है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, ओके, ये वाला प्लेन अपना सबसे बेस्ट है, तो ये है प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, क्योंकि इस पे प्रोजेक्शन एरर सबसे मिनिमम था, ठीक है। अब बेसिकली आपको दिख तो ये एक लाइन ही रही है, तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, एग्री, इसका कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं इसका स्लोप है 4, तो मतलब आपके एक यूनिट चेंज ऑफ एक्स में, एक यूनिट चेंज ऑफ एक्स में, एक यूनिट चेंज ऑफ एक्स में आपकी 4 यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नहीं तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सीधा ही मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड देना, मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ उसको। या फिर इसको ऐसे भी लेके चल ही सकते हैं कि आपके एक यूनिट ऑफ एक्स में आपकी 4 यूनिट्स ऑफ वाई चेंज हो रही है, एग्री। कलर चेंज कर लेते हैं, काफी मोनोटोनस सा हो गया है, कि आपके एक यूनिट चेंज ऑफ एक्स में आपकी 4 यूनिट्स ऑफ वाई निकल के आ रही है, ठीक है। और अब हम बेसिकली इसको निकालना चाह रहे हैं, क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि इसको मैं बताऊंगा आपका, हम आइगन वेक्टर निकालना चाह रहे हैं इधर से, इसको मैं फिर आपके कोवेरिएंस और उससे रिलेट कर दूंगा बेसिकली। लेकिन आइगन वेक्टर होता क्या है, देखो हमारे पास यहाँ तक सभी को समझ में आया, मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, सपोज कर लो स्लोप जो हमारे प्लेन है, जो सबसे जिसमें सबसे मिनिमम प्रोजेक्शन एरर है, उसका स्लोप 4 है, एज्यूमिंग उसका स्लोप है 4, ठीक है। अब उसका स्लोप 4 है, मतलब सिंगल यूनिट ऑफ एक्स पे 4 वाई चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ निकल के आएगा, अगर क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है पहली बात, तो ये कुछ ना कुछ निकल के आएगा, एग्री। गाइस Yes. सपोज कर लो Hypotenuse, निकल yes. के आ गया 4.12, कुछ ना कुछ निकल के आ गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, लेकिन हमको इसको बनाना है 1 क्यों बनाना है, क्योंकि आई वांट टू एक्सप्लेन द आइगन वेक्टर, आसान भाषा में आइगन वेक्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तो इसको 1 कैसे बनाऊंगा, तो इसको मैं इसी से डिवाइड कर दूंगा, 4.12 तो ये 1 हो गया, और बाकी को मैं 4.1 से ही डिवाइड कर दूंगा, मतलब मैं सभी वैल्यूज को एक ही वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं आपको समझा, देखो मैं ऐसा भी ले सकता था कि मैं स्लोप कोई ऐसा लूं कि आपका बेसिकली पाइथागोरस में 1 ही निकल के आए, ऐसा भी ले सकते हैं, उसके लिए मेरे को कैलकुलेशन ऐसे हिसाब से करनी पड़ेगी कि मेरा x इतना हो और मेरा y इतना हो, तो अगर आपका स्लोप आई बिलीव 1 ही होगा इन केस, लेकिन उसके लिए आपका स्लोप 1 होगा, तो लाइन बिल्कुल ही छोटा स्लोप, बहुत छोटी सी होगी, लेकिन जस्ट टू कीप इट मोर इंट्यूटिव कि आपका स्लोप 4 है, आपका हाइपोटेन्यूज 4.12 निकल के आया, तो मेरे को ये 1 लेना, क्यों, क्योंकि दैट इज व्हाट इज आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर बेसिकली ये है कि द वन यूनिट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ PC1, वन यूनिट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ PC1 इज नोन एज द आइगन वेक्टर। बहुत आसान भाषा में बताया मैंने आइगन वेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, कभी पढ़ोगे ना तो पूरी की पूरी PhD होती है आइगन वेक्टर्स पे, ठीक है। तो मैं PhD तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अब बहुत मेजर चंक हो जाता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज का। तो आपका एक यूनिट ऑफ आइगन वेक्टर है PC1 का, मतलब one unit vector pointing in the direction of PC1 is known as one eigenvector of PC1। आसान भाषा में सपोज कर लो ऐसे आपका कोई दूसरा प्लेन PC2 निकल के आया, PC2, तो one unit vector pointing in the direction of PC2 is known as the eigenvector of PC2, eigenvector of PC2, ठीक है, आइगन वेक्टर ऑफ PC2। अब इसको मैंने ये क्यों बताया, हालांकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन मैंने क्यों बताया, मैंने इसीलिए बताया क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्रस से समझाया कि इसमें होता क्या है, कि व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये जो आइगन, देखो मतलब आसान भाषा में बोलो और मेरे को आइगन वेक्टर पता चल जाए, आइगन वेक्टर की डायरेक्शन पता चल जाए, आइगन वेक्टर की यूनिट पता चल जाए, तो मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। क्या लग रहा है आपको, अगर मैं आपको एकदम से एक आइगन वेक्टर में एक वेक्टर की आपको लेंथ बता देता हूँ
और उसकी बेसिकली डायरेक्शन बता दूं तो आप PC1 निकाल सकते हो। क्या लगता है गाइस? Yes. हालांकि हमने पूरा घुमा फिरा के इसको ऐसे निकाला है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपके पास ऐसे प्लेन में एक आइगन वेक्टर बोल देता हूँ जो कि डायरेक्ट करेगा, बेसिकली सपोज कर लो इसको नॉर्थ, आसान भाषा में नॉर्थ ईस्ट होगा ना, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और उसकी बेसिकली यूनिट लगा लो 4 कुछ है, तो आपको एक किस्म से डायरेक्शन मिल जाएगी अपनी PC1 की, ठीक है। तो होता क्या है रियल PCA में, सबसे पहले एक कोवेरियंस मैट्रिक्स बनती है। सपोज कर लो आपके पास 2 फीचर है x, y, तो कोवेरियंस ऑफ x, मतलब ये मैट्रिक्स बनती है आपकी कोवेरियंस ऑफ x, कोवेरियंस ऑफ x, y, कोवेरियंस ऑफ y, x। तो आप देख सकते हो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगी बिल्कुल, कोवेरियंस ऑफ x, कोवेरियंस ऑफ x, y, सॉरी, ठीक है। तो आपकी ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, 3 होगी तो 3 की बनेगी और ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगी। अब इस पे चलता है SVD, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, और भी बहुत तरीके होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो सीधा इससे आपको आपके आइगन वेक्टर्स निकाल के दे देगा। मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था इसको, तो आइगन वेक्टर निकाल के दे देगा, आइगन वैल्यूज निकाल के दे देगा, तो ये आइगन वेक्टर आपका PC1 हो जाएगा। अगर आप इसको बोलोगे आपको 2 चाहिए तो 2 आइगन वेक्टर्स निकाल के देगा, ये PC2। तो बेसिकली वो निकालता भी ऐसे ही है, निकालता भी वो ऐसे ही है कि अच्छा अगर मैं ऐसे आइगन वेक्टर बेसिकली 1 आएगा तो मतलब इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वेरिएशन एक्सप्लेन हो रही है। आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज का कंसेप्ट अलग है, उसको अगर मैं समझाऊं अच्छे से तो आसान भाषा में बोलते हैं, सपोज कर लो, मतलब थोड़ा सा है ना उसको ग्राफिकली समझाना मुश्किल होता है, नहीं समझा पाऊंगा मैं उसको ग्राफिकली, तो खासकर सपोज कर लो कोई बॉल आपको ऐसे स्ट्रेच करनी है कि आपको देखो एक बॉल है, आपको एक ऐसे स्ट्रेच करनी है, तो आप इधर से खींचोगे और इधर से खींचोगे, बस ऊपर से नहीं खींचोगे और नीचे से नहीं खींचोगे, करेक्ट। आप ऐसे खींचोगे जिससे आपकी बॉल बेसिकली ये वाली फॉर्म पकड़ ले, तो उसे कितना खींचे, कितने यूनिट से खींचे, दैट इज नोन एज आइगन वेक्टर आसान भाषा में, ठीक है। क्योंकि आपको देखो ऑप्टिमल इमेज तो ये निकाल के लानी है आपको, अगर ऐसा बोलता, अगर मैं ऐसी इमेज बोलता तो यू वांट टू बी पुलिंग फ्रॉम दीस साइड्स, ठीक है। तो दैट इज व्हाट सिंपल भाषा में दैट इज व्हाट इज आइगन वेक्टर। तो आपका जो इस SVD है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, एक मतलब इस टेक्निक है जो बेसिकली आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स में से, आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स में से ये फिगर आउट कर लेता है कि इसका आइगन वेक्टर ये है, इसका आइगन वैल्यू ये है। आर यू गेटिंग इट गाइस? जो ये लगा लो बैक एंड वर्किंग है, कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाएगा, उस पे SVD रन कर देगा, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज निकल आएंगे, एज सिंपल एज दैट। और रियल एंड थोड़ी इन डेप्थ वर्किंग समझोगे तो ये है, प्रोजेक्ट करेगा, प्रोजेक्शन एरर निकालेगा, वो सब निकालेगा, उस पे बेस्ट प्लेन ढूंढेगा एंड उससे बेसिकली आइगन वेक्टर ऐसे निकलता है अगर आप स्क्रैच से चलोगे। क्लियर? ओके। सभी को क्लियर या नहीं क्लियर? Yeah, like एक बारी खुद भी देखेंगे, but yeah, right now it's clear. yes. आप कहीं भी देखोगे तो ड्रॉ योर कोवेरियंस मैट्रिक्स, और कोवेरियंस में फिर SVD लगा देंगे, और SVD लगाना मैं इसलिए भी नहीं चाह रहा हूँ, लगाने का कोई सेंस भी नहीं है इधर, क्योंकि कभी भी आप PCA का खोलोगे तो उसमें लिखा है सॉल्वर इक्वल टू SVD या SVD प्लस प्लस, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वर जो बेसिकली आपके आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज ही निकालते हैं, जिससे आपका PCA निकलता है, एज सिंपल एज दैट, नथिंग फैंसी। सो दैट इज व्हाट इज PCA, रेयरली यूज्ड। बस आसान भाषा में कोई पूछे कि PCA क्या है, Rahul, you're not audible. कैसे रिलेटेड है, तो दे आर ऑर्थोगोनली रिलेटेड, मतलब बिल्कुल ही एक दूसरे के 90 डिग्री। हेलो Hello. Yeah, now you're audible. I think some delays there Hello. on your side, Rahul. हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? इंटरनेट इशू होगा यार, आई बिलीव yes. नाउ आई वुड बी मोर क्लियर। Yes, you are. ओके, तो आसान भाषा में बोलूं एक चीज और, वेयर आई वाज, सपोज करो अगर आपका ये PC1 है तो PC2 बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे होगा हमेशा, PC2, और सपोज करो PC3 भी है
तो इट विल बी अगेन टोटली 90 डिग्री। इनके मतलब इसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे 90 डिग्री एंड इसका ऐसे होगा 90 डिग्री, मतलब ये दोनों का 90 डिग्री होगा। इट विल बी ऑलवेज ऑर्थोगोनल। व्हाई ऑलवेज ऑर्थोगोनल? बिकॉज पीसीए वांट्स टू गिव यू आउट कंपोनेंट्स व्हिच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड, एज सिंपल एज दैट। क्लियर सभी को? Just Rahul, one more last question is there any limit on dimensions, like how many dimensions PCA can handle? Because it is every time you put in a 90, and basically total number of मतलब जितने number of independent features, अगर आपके डेटा में 100 इंडिपेंडेंट फीचर्स हो तो आप 100 पीसी निकाल सकते हो। but that is what I'm trying to understand. On 90 degree, if you are putting like every time, respect, like the third one, PC3 will be orthogonally pointed to PC1 and PC2, Correct. and then PC4 similarly. So there is so much, like we can have as so many of like dimensions only by if we always go 90 degree, right? If you're talking about 100 dimensions, will there not be any limit on them? No, it will not be. आप हमारे लिए विजुलाइज कर, देखो ह्यूमंस के लिए विजुलाइज करना ही मींस वी कैन नॉट इवन विजुलाइज 4D, लेट मी बी वेरी क्लियर। हम विजुलाइज ही नहीं कर सकते 4D को, लेकिन 4D में जैसे देखो एक बात बताओ मेरे को, 2D ग्राफ है सबको, एक सेकंड यार सिलेक्ट करके डिलीट करने दो पहले तो सब कुछ। एक 2D ग्राफ है, इसमें कोई और 90 बना सकते हो? आप बोल दोगे नीचे से बन गया, और कोई तरीका है इसमें 90 डिग्री बनाने का? नहीं है, परपेंडिकुलर बना ही नहीं सकते। ये एक 3D में क्या होगा, हद से हद बस एक ये बन के आ सकता है आपका, इसमें और कोई एंगल नहीं है। अगर आप कभी भी सोचोगे नहीं बनेगा, कोई बन ही नहीं सकता है। ऐसे ही 4D तो बना ही नहीं सकता मैं खुद भी, तो 4D 50 में नहीं होता है, वो एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा जिसमें, जैसे इसमें 2D में आपका एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए, ऐसे में उसमें भी एक वैसे ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है आपका 90 बनाने के लिए। इट वोंट बी द केस कि उसमें 1090 डिग्री बन सकते हैं स्टिल। वो कब हो सकता है मैं बताता हूँ आपको, वो ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्टली किसी और पीसीस को रिकमेंड रजिस्टर करेगा फिर। मतलब जैसे सपोज कर लो ये आपका एक PC1 है, आपने PC2 बनाने के लिए PC2 बना दिया आपने, ठीक है, और आप बोल रहे हो आपको एक PC3 बनाना है, तो इसी लाइन को ऊपर आप फिर से एक किस्म से, जो कि होता ही नहीं है कभी, इसी को ही आप PC3 भी बोलने लग जाओगे, पर लेकिन वो अलाउड ही नहीं है, आप वो एरर थ्रो कर देगा। इट विल नॉट अलाउ यू टू एक्सटेंड द डायमेंशंस बियॉन्ड योर इंडिपेंडेंट फीचर्स। दैट इज द कांसेप्ट ओवर हियर। और 3D से ऊपर विजुलाइज करना अपने लिए, लेकिन आप कैलकुलेशंस करोगे सुनील, कितना भी कर लेना, मैं बता रहा हूँ नहीं पॉसिबल होगा वो। मल्टीपल ये नहीं है कि बहुत सारे एंगल्स निकल के आ जाएंगे 100 डायमेंशन में 90 डिग्री के, हो ही नहीं सकता वो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। 2D 3D से एग्जांपल लेके चल लेना आप, जो 2D में लग रहा है, जो 3D में लग रहा है, एक यूनिफॉर्म सा लग रहा है, वही आप 100D तक एक्सटेंड करोगे तो सेम चीज निकल के आएगी। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? गाइस तो ये था PCA। आई होप आसान भाषा में क्लियर करने की कोशिश की मैंने, शायद पहली टाइम काफी कॉम्प्लेक्स कर दिया था मैंने। दीपा तो बोल ही नहीं रही आज। I'll have to go through this once on my own, I think, then it will be. I mean, it's not 100% clear, but it is. ओके, नो इश्यूज। आप कोशिश करना, इफ यू कैन गो थ्रू इट, कोवेरिएंस, उसको कोवेरिएंस से समझ में आ जाए, दैट इज आल्सो फाइन। लाइक हाउ दे आर एक्सटेंडिंग, उससे पहले आई बिलीव ऑल ऑफ यू विल हैव टू, पहले उससे पहले आइगन वेक्टर पढ़ लेना। अगर आप कोवेरिएंस के थ्रू जाओगे तो यू कैन रीड द आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज बिफोर दैट। उसके लिए एक लुइस सेरेनो की वीडियो है, लुइस सेरेनो करके एक बंदा है, उसने बहुत अच्छे से समझा रखा है आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। नहीं तो एक 3 ब्लू 1 ब्राउन का भी है, 3 ब्लू 1 ब्राउन की लीनियर अलजेब्रा की पूरी सीरीज है। सो ही हैज आल्सो एक्सप्लेन्ड द आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज वेरी क्लियरली। तो वो सेम चीज है, थोड़ा सा एक्सटेंड, उसमें लीनियर अलजेब्रा बहुत पूछता है, सो दैट्स व्हाई यस यू कैन रेफर टू इट। आई बिलीव तो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ फाइनल कांसेप्ट दैट वी आर काइंड ऑफ मूविंग टू। तो उससे पहले एक और ब्रेक ले लेते हैं एंड देन यू कैन सी काइंड ऑफ डवेल विद टाइम सीरीज। सो ओके गाइस, लेट्स हैव अ ब्रेक। हाँ बोलिए संदेश्वर। 355 मिलना, कब मिलना है? इट्स 340 नो।
तो 15 मिनट का ब्रेक के हिसाब से क्या होगा समय? 351 होगा क्या? नहीं 56, 356। 4 ही कर लेते हैं ना? तो ठीक है, लेट्स मीट बाय 4। Yeah. ओके।